morning, children. Welcome back to social science class. So, children, today our topic is India. We will learn about our country, India. Okay. Okay, children. As you know that it is a part of Asia. India is a part of Asia. It is the seventh largest country in the world. Okay. It is the seventh. It is the seventh largest country. It is the seventh largest country in the world, and it is the second most populous country. First is the China. After that, the India is the second most populous country. Okay. Many people live in here. Okay. India is a democratic country, and many people live in here. Okay. They speak a different languages. They wear the different clothes. Okay, and there are 28 states. How many states in our country? 28 states. You have seen that in our country, India is a land of diverse landforms and cultures. Some of the tallest mountains of the world, vast and fertile plains, rugged plateaus, hot dry desert, and long sandy beaches can be found in India. Children, in previous lessons, I already explained the landforms of India. I explained the plateaus, northern plains, mountains, everything. Okay. India is a vast land. Everyone knows about our country. India is a vast country. It is the seventh largest country. Okay, and the area of our country is 32.8 million square kilometer. It means 32 lakh 87,263 kilometer. The area of our country is 32 lakh 87,263. Okay. Okay. Now you have seen that the map of India. No, it is north to south extend. North to south extend Kashmir to Kanyakumari. This direction is the north and this is the south direction. And Kashmir to Kanyakumari. Kashmir to Kanyakumari. It is extend from north to south is 3,900 kilometer. And west to east 2,900 kilometer. Okay, north to east 3,900 kilometer and west to east 2,900 kilometer. North to south extend 3,900 kilometer and west to east extend 2,900 kilometer. Okay. Okay. As you know that India is a vast country, and you have seen in our country many diversity like landforms, vegetations, language and culture, climate, wildlife. Okay. Landforms, you have seen that every area is not a same. Okay. Somewhere you have seen the hills, mountains, plains, plateaus, desert. Okay. Everywhere you have seen that everywhere is not a same. Vegetations, you have seen the vegetations here also. Language, okay, many people live in here and they speak a different languages. There are 28 states. Okay, people speak in Hindi, Gujarati, Marathi, Punjabi, Bengali, many languages. Climate, ठीक है, climate
You have also seen that the different climate in our country, wildlife in our country. We have seen that different animals, tiger, giraffe, elephant, many more, many more wild animals. Okay. Okay, children. In this lesson, we will learn about the locational setting of India, India's neighbor, and political and administrative division, physical division. Now, first we will discuss about the locational setting. India is located in the northern hemisphere. India is located in the northern hemisphere. कहाँ पर है बच्चों इंडिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो ये कैसे है? अगर आप इंडिया वर्ल्ड का मैप देखते हैं, ठीक है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं, आपसे अगर पूछा जाता है इंडिया की पोजीशन क्या है, तो आप कैसे उसको बताओगे कि इंडिया कहाँ पर है? तो हम जब ये वर्ल्ड के मैप में देखते हैं, ठीक है, तो आपको ये इक्वेटर दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है. तो क्या कह रहे हैं? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो ये इसके ऊपर का, ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ हो गया. तो ये आप यहाँ पर इक्वेटर देख रहे हैं, ये देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेटर लिखा है. तो हमारा ये जो इंडिया है, इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, यू कैन सी दैट, देख सकते हैं आप यहाँ पर. तो ये कहाँ पर है? इक्वेटर के ऊपर, इट मीन्स नॉर्दर्न, ठीक है. ये कहाँ पर पड़ता है आपका? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. कहाँ पर है बच्चों? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये इक्वेटर जो ये आप बीच में देख रहे हैं इक्वेटर, ठीक है, ये क्या है? इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर क्या है? नॉर्थ है, और इक्वेटर के नीचे क्या है? साउथ है. सो द इंडिया इज आवर इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके. नाउ second point is the tropic of cancer 23 degree 30 minute, sorry wrong हो गया, 30 minute north. The tropic of cancer 23 degree 30 minute north passes almost halfway through the country, ठीक है. tropic of cancer 23 degree north 30 minute northern passes, ठीक है. तो जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या कह रहे हैं कि नॉर्दर्न जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसको क्या करता है? पास करता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखो बच्चों, ये हमारी कंट्री हो गई, ठीक है. अब ये आपको रेड लाइन, आपको ये दिख रही है रेड लाइन, ये देखो, ये क्या है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो ये क्या कह रहे हैं? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, ये देखो बच्चों, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है, passes away हाफ वे थ्रू द कंट्री. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या है? हमारी कंट्री से क्या कर रहा है? हाफ वे, मतलब पास हो रहा है, ठीक है, आधा ये डिवाइड हो गया. ये देखो यहाँ पे, ये देखो एक ये आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है. एंड द थर्ड, mainland of India extend between 84 degree 84 degree 8.84 degree north and 37 degree 6 minute north latitude. Mainland of India extends between 8.4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. तो बच्चों लैटिट्यूड्स आपके क्या होते हैं? ये आपके क्या है? लैटिट्यूड्स है. ओके. 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. तो बच्चों आपने सोचा है कि हम ये नॉर्थ ही क्यों कह रहे हैं? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्या है? देखो, ये जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के हमने क्या कहा? इक्वेटर से
ऊपर क्या है आपका नॉर्थ है, ठीक है। और आपका ये देखो, आपका ये इक्वेटर, ये आपकी लाइन है इक्वेटर की, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आपका क्या है, नॉर्थ है, और आपका इक्वेटर के नीचे क्या है, साउथ है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे कहा 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। दिस इज अ लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड। तो आपका 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो आपको पता चल गया बच्चों कि हमने इसे नॉर्थ क्यों कहा, क्योंकि ये इक्वेटर के जो हमारी कंट्री है, ये क्या है, हमारी कंट्री जो है ये इक्वेटर के ऊपर आती है, तो इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्या है, ये आपका क्या आता है, लॉन्गिट्यूड। ये आपका ऐसे, ये आपका लैटिट्यूड है, और बच्चों आपका लॉन्ग, सॉरी लैटिट्यूड ऐसे है, लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आता है, ठीक है। तो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये इंडिया आपकी कहाँ पड़ती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न हेमिस्फीयर कैसे कहेंगे बच्चों, हम इसको यहाँ देखेंगे हम मैप में, ठीक है। हमने यहाँ मैप में देखा तो ये आपका क्या है, ग्रीनविच टाइम, ठीक है। तो ये आपका ग्रीनविच टाइम है। तो यहाँ से आपका ये क्या पड़ेगा, आपका ईस्ट, ठीक है। यहाँ से आपका इधर हो गया ईस्ट, और यहाँ से इधर हो गया आपका वेस्ट। तो आपको इसलिए हमने लिखा है इंडिया लाइज इन अ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है ये आपका ग्रीनविच टाइम हो गया, ठीक है। हमने इसलिए लिखा है कि जो इंडिया है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपका ईस्ट हो गया और ये आपका हो गया वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया आपका कहाँ पड़ता है बच्चों, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, क्लियर हुआ इतना। ओके, सेकंड टॉपिक इज इंडियाज नेबर्स। हमारी कंट्री, जो हमारी नेबर कंट्री है, कौन कौन से हैं बच्चों हमारी नेबर कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। कहाँ पर है बच्चों ये, यहाँ देखेंगे हम कंट्री, देखो ये हमारी नेबरिंग कंट्री, ये देखेंगे हम, ये क्या है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, नेबरिंग कंट्री है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान भी देख सकते हैं आप, उसी के ऊपर यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान। ओके, 1 2, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान, ठीक है। फिर क्या है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे चाइना, ठीक है। ये क्या है, चाइना, नेपाल, नेपाल, ये देखो बच्चों ये क्या है, नेपाल, ठीक है। ओके, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ओके। भूटान, ये देखो ये है म्यांमार, ठीक है। ये है म्यांमार, भूटान, ओके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, neighboring country are Pakistan, Afghanistan, third is China,
fourth Nepal, fifth Bhutan, sixth बांग्लादेश, सेवन म्यांमार। ठीक है, these are our neighboring country. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ये हमारी क्या है, नेबरिंग कंट्री है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। Physical features. India is a land of vastly varied landforms. There are plains, hills. You have seen that in our country. Plains, hills, mountains, desert, plateaus, long coastline, forest, and islands. These are known as the physical feature of the land. ठीक है, these are plains, hills, mountains, desert, plateaus, a long coastline, forest, and island. These are known as physical features. A large number of rivers flow through the land, such as rivers Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna, and Narmada, and Mahanadi. These rivers flow in the northern plains. ठीक है, which rivers? Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Narmada, Mahanadi. The number of rivers flow in this land. On the basis of its physical feature, India can be divided into five main regions. Okay, India divided into five main regions: northern mountains, northern plains, Deccan Plateau, coastal plains, and island and western desert. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स ये है बच्चों आपका, ये क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, उसके नीचे आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, ये आपका जो मिडिल पार्ट है, इट इज द डेक्कन प्लेट्यू। कोस्टल प्लेन्स, यहाँ से आपका ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, वेस्टर्न वेस्टर्न डेजर्ट, यहाँ आपका ये क्या है, राजस्थान जो एरिया है ये क्या है, वेस्टर्न डेजर्ट। A map showing the kind of land a country has is called a physical map. This is a physical map of India. तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, this is called a physical map of India. ठीक है, ये क्या है, हमारा physical map है इंडिया। States and Union Territories. As you have read in your previous classes, there are two sets of government in India. One is the central government and the other is the state government. Okay. So India, okay, as you know that India is a vast country. So India is a vast country. So it is a difficult to one person to control the whole state. Okay. It is difficult to control the whole state. That's why India divided into, sorry, government divided into two parts. Okay, government divided into two parts. First is the central government and state government. Central government is located New Delhi. Okay. It is difficult to one person to control the whole country, whole states. Okay, so that's why government divided into two parts, central government and state government. Central government is located in the New Delhi, and state, it means where do you live, okay, which state you belong. This is called a state government. There are 28 states, 28 states, okay, and 8 union territory. Each state has its own government. Okay, there are 28 states, and states each states have their own government. 28 स्टेट आपके कंट्री में है, तो हर एक स्टेट का क्या है, अपनी एक गवर्नमेंट है। ठीक है, each state
has its own government which is chosen by people of that state. ठीक है, जिसको कौन चूज करता है, उसी स्टेट के पीपल्स चूज करते हैं. The union territories, however, are directly governed by the central government. Okay, union territories. Union territories. Union territory, it is governed, it is controlled. Union territory, it is controlled. It is controlled by central गवर्नमेंट. ठीक है, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या है, कंट्रोल करती है. क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि जो ये यूनियन टेरिटरीज है ये एक छोटे छोटे सी स्मॉल स्मॉल सी सिटीज स्टेट्स हैं. ठीक है, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है ये क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं. तो इसलिए इनको क्या है, यूनियन टेरिटरीज को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है. The map on the next page shows the states and union territories of India and their capitals. ठीक है, in this map you have seen that the states and their capitals. ठीक है, and union territories also. तो ये आपका था इंडिया लेसन. ठीक है, इंडिया चैप्टर हमने पढ़ा, इंडिया के बारे में हमने पढ़ा. यहाँ पर हमने देखी डाइवर्सिटी, देखी हमने यहाँ पे डाइवर्सिटी. ठीक है, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडिया जो हमारी कंट्री है ये क्या है, अपने आप में ही एक क्या है, नेचुरल जो हमें प्रोटेक्शन देती है. जो हमारी कंट्री है वो क्या है, नेचुरल प्रोटेक्शन देती है. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया क्या है, यहाँ पे हिमालय है. ठीक है, हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है, चाइना से प्रोटेक्ट करता है. ये आपका क्या हो गया, समुद्री एरिया हो गया. ठीक है, ये भी हमें क्या है, बचाता है यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ पे ये पोर्शन खाली है, लेकिन पहले क्या था, ये पाकिस्तान हमारी कंट्री का एक हिस्सा था. अब ये अलग हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्या है, माउंटेन्स है. ठीक है, तो ये इस तरीके से जो इसकी जो लोकेशंस है, जो इसका फीचर है, इंडिया की जो फीचर है, ये एक अपने आप में क्या है, एक डिफरेंट है. ठीक है, ये क्या है, नेचुरल है. इट इज टोटली नेचुरल. ठीक है, ये एक नेचुरल है. हमारी कंट्री क्या है, क्या बताया आपको, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इक्वेटर के क्या, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये इक्वेटर के क्या आता है, ऊपर आता है. तो इसलिए ये कहाँ पड़ता है, नदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, तो ये बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, इंडिया लेसन. ठीक है, सबको समझ आया? इंडिया के बारे में आपको पढ़ाया तो सबको समझ आ गया होगा कि इंडिया क्या है, हमारी कंट्री में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ आपको रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स, ठीक है, डेजर्ट, आपको सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.